Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Cambridge Mathematics 4024 and I am your teacher Arzu Sufyan. And as you know, in last week we were discussing about the topic matrices, and we had done many different types of theoretical portion of this topic. Now today we're gonna discuss exercise 5C and 5D, which is very much important exercises, and question from the exercise 5 question type of question which are in exercise 5C and 5D can become in your Cambridge paper. So let us start, because we were doing last week exercise 5C but some questions were left, and now today we will start exercise 5D. These two exercises are very important exercises. So let us start from exercise 5C and 5C, and we will start this exercise from question number 8, because 7 till question number 7 we have done. Okay, in question number 8, if A is equal to matrix 2 0 1 5 and B is equal to matrix 1 0 2 k, what you have to find AB and BA. So first of all you will find AB. It means that you will multiply the matrix A and B. First you will write matrix A, then matrix B, and you know very well, and I think so you have done much practice to multiply two matrices. So 2 multiplied by 1, 2 ones are 2. You will multiply rows by column, and 0 multiplied by 2 0. Since first row second column 2 multiplied by 0 0, and 0 multiplied by k 0. Same like second row first column 1 multiplied by 1 1, and 5 multiplied by 2 10. Same like second row second column 1 multiplied by 0 0, and 5 multiplied by k k. Now you will add these values: 2 plus 0 2, and 0 plus 0 0. 1 plus 11 10, 1 plus 10 11, and 0 plus 5k 5k. Now you will multiply BA. You will do multiplication of BA. BA means you will first write the matrix B, then you will write the matrix A. So same like you will multiply first row first column, first row second column, first row second row first column, and second row first column, then you will get like this. Okay, so BA will be equal to 2 ones are 2, 0 ones are 0, 2 0 0, 0 5s are 0, 2 2s are 4, second row first column, 2 2s are 4 plus k ones are k, 2 0 0 plus 5k. So what will be come? BA is equal to 2 0 4 plus k, and 0 plus 5k 5k. Now in our part 3, the condition is given: if AB is equal to BA, then find the value of k. इट्स मीन्स दैट जो ए बी की आंसर आया है, जो मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया वो, एंड सेम लाइक मैट्रिक्स बी ए को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो यू विल टेक द इक्वल, you will take these two matrices equal to each other. ठीक है, then you can comparison it, because in equivalent matrix you can see कि their order should be same and their corresponding entries should be same. So orders are same because these two matrices are having 2 by 2 order, and this matrix is also having 2 by 2 order. Now the corresponding entries: first entry is equal to first entry, second entry is equal to second entry, and the fourth one entry is equal to this entry. 5k is equal to 5k. Here 11 and 4 plus k. Definitely these third one entry should be equal. If not will be equal, then you can take it equal. ठीक है, so in 4 plus k is equal to 11, then what will be? K will be equal to 11 minus 4 is equal to 7. This will be the value of k. Now come to the question number 9. ठीक है, इन माई प्रीवियस लेसन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ लाइक दिस. मैंने कहा था दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स 1 0 0 1. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके पास मेन डायगनल होता है उसके एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और लीडिंग डायगनल के एलिमेंट हमेशा 1 होते हैं. दिस कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, बट इन योर सिलेबस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ऑफ 2 by 2 ऑर्डर. ठीक है, सो ए व्हाट यू हैव टू प्रूव, और मैंने आपको ये एक स्पेशल टाइप भी बताई थी लाइक दिस, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सॉरी आइडेंटिटी का मतलब होता है 1 यूनिट मैट्रिक्स 1. Definitely whenever in a number system you will multiply a number with 1, then you will get again the number. Same like whenever identity matrix एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो मैट्रिक्स सिस्टम में यूनिट मैट्रिक्स कॉल होता है. यूनिट का मतलब होता है आइडेंटिटी, यूनिट का मतलब होता है 1. So whenever you will multiply a given matrix will be identity matrix, then you can get the same matrix. यानी कि A multiply by identity matrix या identity matrix will multiply by a matrix A, then you will get the result A, again the same matrix.
So in question number 9 you have to prove कि if AI matrix A is equal to this, I is equal to this, what you have to prove AI is equal to IA is equal to A. तो A आपको गिवन है ये मैट्रिक्स, I आपको गिवन है ये मैट्रिक्स. नो यू मल्टीप्लाई 8 1s are 8 minus 3 zeros are 0. 8 zeros are 0 minus 3 multiplied by 1 minus 3. 7 1s are 7, 5 0 0, 7 0 0, 5 1s are 5. What you will get? 8 minus 3 7 5. You can see that you have a result now which is equal to A matrix. So same like you can multiply by I multiply by A. तो I और A में क्या लिखेंगे? पहले आप मैट्रिक्स I लिखेंगे 1 0 0 1 और फिर आप मैट्रिक्स A लिखेंगे I A में. ठीक है, तो A क्या मैट्रिक्स है? 8 minus 3 5 7. Again when you will 7 5 sorry, again when you will be multiply you will get the again matrix A which is 8 minus 3 7 minus 5. So the result will be proved. So always remember whenever identity matrix multiply by a given matrix you will get the same matrix. ठीक है. Now come to the exercise 5D. So remaining question of exercise 5D is same like these question. ठीक है. Now come to the exercise 5D. Exercise number 5D question number 1 है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 4 5 6. In question number 1 you are having the 7 or 8 parts. Every part is same like each other. ठीक है. So आपके पास क्या है कि इस मैट्रिक्स को you have to find the determinant and you have to find the inverse of the matrix. So how you will find the determinant? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 6 3s are 18 minus 5 4s are 20. 18 minus 20 will be equal to minus 2. अब हमारे पास रिजल्ट आया है -2. अब आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो नंबर ना आए यानी कि ज़ीरो आ जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब इसका आंसर क्या आया है? -2. सो इन्वर्स एग्जिस्ट. तो हाउ यू विल फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ A. ठीक है. सो बाकी इन्वर्स में आप बाकी जब आप इसके साथ inverse में 1 over determinant of A, then you will write a matrix by you will write a changing matrix. You will change the sum. You will do the sum changing in the given matrix. How you will do the changing? You will replace the values of these two elements. ठीक है. इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें. इनके 3 की जगह पे आप रिप्लेस कर देंगे. 6 की जगह पे आप 3 लिख दें. ठीक है. 6 की जगह पे आप 3 लिख दें. 6 की जगह पे आप 3 लिख दें और 3 की जगह पे आप 6 लिख दें लाइक दिस. एंड -4 और यू विल चेंज द साइन ऑफ दीज टू वैल्यूज़. ठीक है. -4 एंड -5. ओके. नाउ यानी कि 6 और ये 3 देन -4 एंड -5. ठीक है. इन दोनों की आप रिप्लेस कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे. अब 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है. 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था? -2. तो 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे आप -2 लिखेंगे. इट्स मीन दैट -1 over 2. अब ये क्या है आपके पास? 6 -4 5 -3. सो योर आंसर विल बी -6 over 2 -4 over 2 -5 over 2 और दिस विल बी 3 over 2. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा जी? 2 3s are 6. ठीक है. और 2 2s are 4 -5 over 2 एंड दिस विल बी आपके पास +5 over 2 एंड दिस विल बी -3 over 2. सो दिस विल बी योर आंसर नो. ठीक है. सो दिस विल बी योर आंसर नो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5D. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5D. क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ P इज इक्वल टू 7 9 3 4 एंड Q इज इक्वल टू 4 -9 -3 एंड 7 फाइंड P Q एंड QP. डिटरमिन द रिलेशन बिटवीन P एंड Q. P एंड Q के बीच पे आपने क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है. अच्छा, रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड P Q. मतलब है आप P को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Q से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. P को Q से मल्टीप्लाई करेंगे. आपके पास क्या आएगा? लाइक दिस. ये देखें. अब मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूँ. 7 4s are 28 9 3s are -27 प्लस माइनस माइनस. सेम लाइक 7 अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 9s are -63 हो जाएगा और 9 7s are 63 प्लस 63. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4s are 12 and 4 multiplied by -3 -12. 3 9s are -27 and 4 multiplied by 7 28. Now you will do simplify it. 28 minus 27 1
12 minus 12 0, minus 63 plus 63 0, minus 27 plus 28 1. So your answer, you can see that how which type of matrix you are getting here. It is an identity matrix ना, तो आपको पास क्या आंसर आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है. ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है. सेम लाइक वी विल, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. क्यू को पी से मल्टीप्लाई करें. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है, बिकॉज ये कैम्ब्रिज एग्जाम्स में आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. अच्छा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी. अब इस तरह से क्यू को पी से मल्टीप्लाई करें, सेम प्रोसेस से यू विल गेट. जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही सेम आंसर आया है जो पिछले में आया है, आई. यू कैन सी डैट जब आपने पी को क्यू से मल्टीप्लाई किया और क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया, दोनों के आंसर क्या आया है, सेम आया है. और वो सेम आंसर क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट वेन एवर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाई ईच अदर एंड यू विल गेट द आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट्स then you can say that these two matrices are inverse of each other. Same like जैसे हम नंबर सिस्टम में कहते हैं कि 1 is the identity of every what is the inverse of every number in our number system. जब किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 के इक्वल आ जाए तो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. लाइक अगर मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है, लाइक इफ आई एम हैविंग अ नंबर 2, अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी देन यू विल गेट द आंसर 1. ठीक है, तो इसका मतलब है हर नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट द आंसर 1. सो हर नंबर का इन्वर्स इन नंबर सिस्टम में उसी ही नंबर का क्या होता है, इन्वर्ट होता है, क्योंकि देन यू विल गेट द आंसर इक्वल टू 1. सेम लाइक मैट्रिसेस सिस्टम में हर दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय ईच अदर एंड यू विल गेट द आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इट्स मीन्स दैट यू कैन से दैट P is the inverse of Q and Q is the inverse of P. So here you can deduce this result. यहाँ पे मैं इस रिजल्ट को हाईलाइट करना ज़रूरी समझूंगी कि जब एक मैट्रिक्स है A को आप A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. तो आपने ये याद रखना है, ये रिजल्ट याद करना है. A इन्वर्स A इज़ ऑलवेज इक्वल टू I, A इंटू A इन्वर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू I. इसका मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. उस मैट्रिक्स का रिवर्स हो गया, जब टू मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है. इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई, दे आर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ना, कि अगर टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. तो ठीक है, तो ये आपने ये याद रखनी है प्रॉपर्टी एंड दिस यू विल यूज इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 5D. Here A is equal to this, B is equal to this. Write down the inverse matrices of A inverse and B inverse. Hence use your result to find the matrices P and Q. अच्छा, आपको मैट्रिक्स A भी गिवन है, मैट्रिक्स B भी गिवन है. फर्स्ट आपने A इन्वर्स और B इन्वर्स फाइंड आउट करना है. उसके बाद आपने ये इक्वेशंस लेके मैट्रिक्स P और मैट्रिक्स Q फाइंड आउट करना है. सो हाउ यू विल फाइंड इट, फर्स्ट यू कैन सी दैट A इज इक्वल टू दिस. फर्स्ट यू विल फाइंड द इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स फर्स्ट यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट. ठीक है, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 2s are 4, 3 1s are 3, 4 minus 3 is equal to 1. Then what will be the A inverse? A inverse होगा 1 over determinant of A. तो 1 over 1 का मतलब क्या होगा, 1 over determinant of A. वो क्या है, determinant of 1 है ना. सो 1 over 1 होता है. That's why I am not going to show here. ठीक है, और बाकी इसमें हम क्या करेंगे, इनकी हम लोग चेंजिंग कर देंगे, इस मैट्रिक्स की चेंजिंग कर देंगे. इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे. 2 and 2 -3 and -1 you can see here. This is the A inverse of matrices. Same like you will find the B inverse. First of all you will find the determinant of B. 2 1s are 2 minus 4, 3s are 12, 2 minus 12 is equal to -10. Then what will be B inverse, 1 over determinant of A. Determinant of A is -10 and you will do the sum changing in this matrix. You will replace the values of these two elements 2 and 1 and you will change the sign of these leading diagonal -4 and -3. This is your B inverse. Now what you will do, up from equation 1, ये this is your equation 1, AP is equal to B. AP is equal to B है ना. So you have to find the matrix P. ठीक है, यही फाइंड करना है. अब here you will use this result, A into A inverse हो या A inverse into A. This is equal to I. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस रिजल्ट को याद रखिएगा. अब आपको यहाँ से P मैट्रिक्स फाइंड करना है और A को आपने यहाँ से
एलिमिनेट कर देना है, ए को ख़त्म करना है। वेन एवर, अब इसमें ये चीज़ नहीं होती, जब हम किसी नंबर्स में करते हैं ना तो ए से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, मैट्रिक्स में डिवीजन का प्रोसेस नहीं है, तो हमने ए को ख़त्म करके पी लेकर आना है। सो हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट ए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँगी, और मैं ये वाली पोजीशन भी याद रखूँगी। मैं यहाँ पे ए इन्वर्स पहले लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी ए इन्वर्स पहले लिखना है, बाद में नहीं लिखना, देन यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। ठीक है, सो ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू पी, देन ए इन्वर्स बी, मैंने बोथ साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज my property A inverse A, which I have told you. A inverse A is always equal to I. I will place the value of A inverse A इक्वल टू आई, आई पुट कर दूंगी, आई पी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपने यहाँ पे करके नहीं दिखाना, आपने सिर्फ ये याद रखना है जब भी किसी भी मैट्रिक्स के साथ आई पी जैसे आ गया तो उसका मतलब अगेन पी ही होता है। यानी कि आपको मैंने अभी क्वेश्चन में पिछले में बताया है ना, जब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। तो यहाँ हम वही रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, वही मतलब प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब ए इनवर्स की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, 2 - 3 - 1 2, और बी की जगह पे मैं वो मैट्रिक्स पुट कर दूंगी विच इज गिवन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द आंसर लाइक दिस, सेम लाइक क्यू ए इज इक्वल टू बी। हियर यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स क्यू। नो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब आप यहाँ पे पोजीशन याद रखें कि यहाँ पे मैंने ए इनवर्स को यहाँ नहीं मल्टीप्लाई करना है, जहाँ ए है उसके साथ ए इनवर्स लिखना है यहाँ पे, तो इधर भी मैं वही लिखूंगी, क्यू ए इंटू ए इनवर्स। सो सेम रिजल्ट, ए इंटू ए इनवर्स भी आई के इक्वल होता है। यहाँ मैंने आई पुट कर दिया, क्यू आई का मतलब क्या होता है, क्यू, क्योंकि आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, अगेन वही मैट्रिक्स आ जाता है। बाकी बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, यू विल मल्टीप्लाई इट, देन यू विल गेट द आंसर दिस। सो माय डियर्स, दिस इज द एंड, फाइनली दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर नो। ठीक है ना। सो नो यू विल डू द प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन योर समर टास्क नो विच आई विल असाइन यू। ठीक है, एंड डेफिनेटली फर्दर वी विल डिस्कस in about these exercises in our meet class. Thank you so much.